हाय आर्मी, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मैंने एक वन शॉट का मतलब नहीं दे के रखा था। मैंने एक वन शॉट के बारे में बताया था कि मैं वन शॉट देने वाली हूँ। सॉरी आर्मी, वो वन शॉट नहीं दे पाऊंगी क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग कुछ ज्यादा है। मैंने 3 पार्ट की रिकॉर्डिंग की है, अभी 2 पार्ट की रिकॉर्डिंग होना बाकी है। तो सॉरी, वो वन शॉट तो नहीं आ सकता इतनी जल्दी। लेकिन आपको ये ना लगे कि धीरे झूठ बोला है वन शॉट का, तो ऐसा नहीं है। मैंने उस वन शॉट की रिकॉर्डिंग की है बट पूरी नहीं की है। तो इससे पहले कि आप लोग ये सोचो कि दी झूठ बोलती है, तो इसीलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग बहुत अर्जेंट की और मैंने सोचा कि मैं आपको ये वन शॉट दे दूँ। बहुत छोटा वन शॉट बनाया ताकि आप लोग को भी बुरा ना लगे और मेरा काम भी हो जाए, काफी इंतजार ना करना पड़े आपको। तो ये वन शॉट, एक छोटा सा वन शॉट आप सबके लिए। आई होप आपको अच्छा लगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है क्योंकि इसकी स्टोरी कुछ अलग ही होगी। मुझे भी नहीं पता ये स्टोरी मैंने कैसे बना ली, मैं भी नहीं जानती। तो प्लीज माइंड मत करिएगा इस स्टोरी को लेके। इसका कोई मतलब नहीं है, ना आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं है। तो आप लोग एडजस्ट कर लो इस स्टोरी को। ओके बाय। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm
ऑफकोर्स डैड, मुझे पता है वहाँ के प्लेनेट के बारे में, वहाँ की टेक्नोलॉजी की तो क्या बात की जाए, वहाँ पर टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे प्लेनेट के लोगों को ज़रूरत है उसी टेक्नोलॉजी की। पर डैड, आप कैसे वहाँ से हेल्प लोगे? हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी डायरेक्ट हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे डैड? उनके बेटे मतलब वहाँ के प्रिंस तुमसे शादी करने के लिए, वहाँ के प्रिंस चाहते हैं कि वो तुमसे शादी करें, उसके बाद वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर डैड, उनके प्रिंस को मैं जानती नहीं कि उनके प्रिंस से मैं शादी कैसे कर लूँ। देखो जीवन में कुछ नहीं जानता, बट समझ लो इतना कि हमें उस प्लेनेट की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है अपने प्लेनेट पे, तो इसी वजह से हमें तो उनसे हेल्प लेनी ही पड़ेगी। पर अगर जो वो कुछ शर्त रख रहे हैं तो उन शर्त को तो पूरा करना ही पड़ेगा। उनके प्रिंस चाहते हैं कि वो तुमसे शादी करें। मुझे नहीं पता कि उस प्रिंस को तुम्हारे बारे में कैसे पता, बट वो प्रिंस तुमसे शादी करना चाहता है। सुना है कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुमसे प्यार करता है। वैसे भी जिमिन, तुमने इतने सारे लड़कों को यानी कि इतने सारे प्रिंस को रिजेक्ट करके रखा है, तो प्लीज़ उस प्रिंस को एक्सेप्ट कर लो। उसकी वजह से हमारे प्लेनेट पे बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तुम समझती क्यों नहीं हो? प्लीज़ अपने प्लेनेट के लिए ऐसा कर लो। पर मैं शादी डैड प्लीज़, इट्स ओके डैड। डैड देखिए, मैं नहीं कर पाऊँगी। ओके डैड फाइन, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप उनको बता दीजिए जब चाहे वो शादी कर सकते हैं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में जीवन मेरा? थैंक यू सो मच। इट्स ओके डैड, आपको थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हाँ नहीं करती तो शायद हम कभी टेक्नोलॉजी को इतना यूज़ नहीं कर पाते। तुम तो जानती हो कि हमारे म्यूजिक की वजह से हमारा म्यूजिक इतना यूज़ नहीं कर पाते हम। हमारे म्यूजिक की वजह से हमारा यूज़ करते हैं तो हमारा प्लेनेट वीक हो जाता है, तो इसे हम भी चाहते थे कि हम भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। मैं डैड समझ सकती हूँ, प्लीज़ डैड इतना रिक्वेस्ट मत करिए। मैंने कहा ना मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो आप उनको बुलाइए और शादी की बात करिए। आप उनको बुला के शादी की बात करिए। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी जीवन वहाँ से चली जाती है। तभी आर्य बोलता है, एक काम करो, जाके वहाँ पर इन्फॉर्म कर दो कि जीवन मान गई है शादी के लिए। यहाँ पर भी पता चल जाता है, वहाँ पर तो फुल तैयारी हो चुकी होती है, क्योंकि उनको पता था इसी वजह से उन्होंने सारी तैयारी करके रखी थी। इसीलिए वो लोग वहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं जिमिन की शादी करने जंगो के साथ। हाँ आर्मी, यहाँ पर आप लोगों ने सही गेस्ट किया है। जिमिन की शादी किसी और के साथ नहीं, जंगो के साथ हो रही। वो किसी और का प्लेनेट नहीं, जंगो का प्लेनेट है। वो वहाँ का किंग है, प्रिंस नहीं। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि वो प्रिंस है, वो प्रिंस नहीं किंग है वहाँ का। तो चलिए देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या आता है। अरे ये तो वही है ना जिसे मैंने पहली बार देखा था। ओह माय गॉड, इसे तो मैं पसंद करती हूँ। पर ओह नो, ये तो जंगकुक है ना जिसे मैं पसंद करती हूँ। ओह नो, जिमिन ये क्या करी? अगर ये ऐसे रिएक्शन देने लगी तो सभी को पता चल जाएगा कि तो जंगकुक के बारे में सब कुछ जानती है। हाँ आर्मी, जिमिन जंगकुक के बारे में सब कुछ जानती है। वहाँ के प्लेनेट के बारे में इतना नहीं, पर जंगकुक के बारे में वो सब जानती है। इसलिए जिमिन को पता है वहाँ की टेक्नोलॉजी का नहीं, जंगकुक का पता है। जंगकुक को जिमिन पसंद करती है और वो यहाँ पर अपने रिएक्शन नहीं देना चाहती ताकि जिमिन को कोई शक न करे। चलो देखते हैं। तभी जिमिन जो होती है नीचे आ जाती है। रो रो अर्ज़ा मिन्नत और फरियाद करा, रो रो अर्ज़ा मिन्नत और फरियाद करा। रब दी कसम मैं ता तेरे नाल किन्ना प्यार करा, ओ रब दी सो मैं ता तेरे नाल किन्ना प्यार करा। रो रो अर्ज़ा, ये देखो वहाँ के किंग। पर डैड, आपने तो प्रिंस कहा था ना? मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैंने प्रिंस कहा था, बट वो वहाँ का किंग है। मैंने गलत सुना था। वहाँ का ये प्रिंस है, मतलब किंग है। डैड आप एक बार फाइंड कर लो कि ये किंग है कि प्रिंस है। अब मुझे क्या पता, मुझे ठीक से कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना ही पता है कि ये वहाँ का किंग है। पहले प्रिंस था, अब किंग हो गया। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, एक ही दिन में ये किंग बन गया। पर कोई बात नहीं बेटा, इससे तुम शादी कर लो, हमारे प्लेनेट की हेल्प हो जाएगी। ओके डैड। तभी जब होती है वहाँ पर जाके खड़ी हो जाती है जहाँ पर वेडिंग हो रही है।
हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई नहीं होती है। जिमी तो जंगकुक को एक भी रिएक्शन नहीं देती है, ऐसे ही सिंपल ही शादी कर लेती है जंगकुक के साथ। तभी जंगकुक जो होता है जिमी को अपने प्लेनेट पे लाता है, तभी जिमी वहाँ पर देखने के बाद बोलती है ये प्लेनेट सिर्फ मैंने बाहर से देखा था, अंदर से आज पहली बार देख रही हूँ। क्या हुआ मिसेस जॉन जिमिन, क्या हुआ? तुम इस प्लेनेट को इस तरह से क्यों घूरे जा रही हो? कुछ नहीं, वो ये प्लेनेट सिर्फ मैंने बाहर से देखा है ना, इतना करीब से कभी नहीं देखा था। तो देख लेना, ये प्लेनेट कहीं भाग के नहीं जा रहा, आज से ये प्लेनेट तुम्हारा नहीं। मैंने डैड से बात की है, मैंने अपने डैड से बात करके रखी है, मैं अपने प्लेनेट की क्वीन हूँ। तो आपको पता होना चाहिए, मैं सिर्फ अपने प्लेनेट के लोगों की वजह से यहाँ पर हूँ। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए मैं वहाँ की क्वीन हूँ और मैं आज एक दिन के लिए यहाँ पर हूँ। आपको पता है ना, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आज एक दिन के लिए तुम यहाँ पर हो और कल से तुम वहाँ की क्वीन हो, मैं जानता हूँ। अब ऐसे रिएक्शन देना बंद करो, क्योंकि अब तो शादी हो गई और शादी के बाद क्या होता है तुम्हें तो पता ही है ना, फर्स्ट नाइट होती है। तो मेरी फर्स्ट नाइट को ख़राब मत करो कि क्या कहा तुम मेरे साथ फर्स्ट नाइट स्पेंड करने वाले हो। ऑफकोर्स तुम मेरी वाइफ हो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो जो तुमसे मुझे पूछना पड़ेगा इसके लिए भी। जाओ चेंज करके आओ, मेरा मूड मत ख़राब करो क्योंकि अच्छे मूड में हूँ मैं। और हाँ, इस तरह से दिखाना बंद करो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो। तो ऐसे रिएक्ट करना बंद करो, तुम ऐसे ही रिएक्ट करती रही ना तो इस रात का तो पता नहीं, बट हाँ मेरे टाइम का बहुत लॉस्ट हो जाएगा, तुम नहीं जानती हो। क्योंकि कल मुझे तुम्हें वहाँ पर छोड़ के भी आना है तुम्हारे प्लेनेट पे। तो ओवर रिएक्शन देना बंद करो, जाओ चेंज करके आओ। हाँ आर्मी, जंगकुक को पता है कि जिमिन उसको पसंद करती है और प्यार करती है और जंगकुक भी उसे पसंद करता है और प्यार करता है। और इसीलिए उसी ने कहा था कि वो जिमिन से शादी करना चाहता है, क्योंकि उसको पता था कि जिमिन वहाँ की क्वीन है और वो एक डिसीज़न कभी नहीं लेगी जंगकुक से शादी करने का। इसलिए जंगकुक ने डिसीज़न लिया जिमिन से शादी करने का। हाँ आर्मी, जिमिन के प्लेनेट पे जिमिन क्वीन है, क्योंकि उसकी पहले मॉम क्वीन होती थी, बट अब उसकी मॉम के जाने के बाद जिमिन वहाँ की क्वीन है। उसके डैड वहाँ के किंग नहीं है, क्वीन होती है वहाँ पर, तो इसीलिए वहाँ पर जिमिन क्वीन है। तो और जंगकुक के प्लेनेट पे किंग होता है, तो जंगकुक अपने प्लेनेट का किंग है। समझ गए आप लोग? मुझे नहीं समझ गए तो सॉरी। पता नहीं इसे कैसे मेरे बारे में इतना कुछ पता है, पता नहीं, पर जो भी हो मुझे भी तो उसके बारे में सब कुछ पता है। मैं भी तो उसको पसंद करती हूँ, मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी मुझसे प्यार करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो भी मुझसे प्यार करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिमिन जो होती है फ्रेश होकर वहाँ से निकल के हाथ रखती है, तभी जंगकुक बोलता है हो गया तुम्हारा फ्रेश होना? एक बात बताओ, अगर तो मुझे पसंद करती थी तो कभी बोला क्यों नहीं? तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि वहाँ पर मैं क्वीन हूँ, तो क्वीन हो के अगर किसी के प्यार व्यार के चक्कर में पड़ती तो मेरे प्लेनेट की तो बैंड बज जाती। तो अब क्या नहीं बजने वाली तुम्हारे प्लेनेट की बैंड? अब तो मैं वापस जाने वाली हूँ ना, तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात के लिए हूँ यहाँ पर। हाँ अगर जब वो भी तुम्हारा रिचुअल नहीं होता तो आज भी मैं अपने प्लेनेट पे होती। पता नहीं कौन सा तुम्हारा रिचुअल है, ये रिचुअल नहीं है, ये रिचुअल मैंने बनाया है तुम्हारे साथ ये रात बिताने के लिए, अपने प्लेनेट पे लाने के लिए ऐसा किया मैंने। झूठ बोला, ऐसा कोई रिचुअल नहीं होता। तुम चाहती तो आज भी वहाँ पर रुक सकती थी, अपने प्लेनेट से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। ये मैंने झूठ बोला कि ये हमारा रिचुअल है कि ब्राइड को अपने पास रखा जाता है एक रात के लिए। क्या ये कोई रिचुअल नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई रिचुअल है ही नहीं, पर मैं किंग हूँ तो ऐसे रिचुअल बना सकता हूँ। क्यों? अब ऐसी वैसी बातें करना बंद करो, जो मुझे करना है वो तो करने दो। बहुत दिन तुम्हारे लिए वेट किया है, पहले तो इंतज़ार किया है, बाद में जाके तुम्हें पाया है। तो अब इतने दूर जाने की बातें छोड़ो, पास आ जाओ मेरे। तभी जंगकुक जिमिन के पास चला जाता है, तभी जिमिन बोलती है इतनी क्या जल्दी है, अभी तो मिले हो, एक ही दिन में इतना करीब आना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा एक दिन हुआ है, मुझे जहाँ तक पता है आपको हमें प्यार करते हुए काफ़ी साल हो गए और मुझे तो सिर्फ 1 साल हुआ है आपसे प्यार करते हुए। आपको तो
कितने साल हो गए, आपको पता भी है मुझसे आप कितने सालों से प्यार करती हैं, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो इतने सालों का प्यार आपको एक ही दिन में मिल गया है, उसके साथ खुशी से उसके साथ सेलिब्रेट करने की बजाय तुम नखरे दिखा रही हो, क्यों? वो तुम्हें ये कहना चाहती थी कि कुछ दिन वेट कर लेते हैं। नहीं, मुझसे और वेट नहीं होता, तभी जाऊँगा कुछ होता है जिनको किसकी ना लगे। ऐसे ही इन दोनों की रोमांटिक नाइट खत्म होती है और जिमी ज्योति अपने प्लेनेट पे वापस आ जाती है। तभी आर्यन बोलते हैं, तुम तो यहाँ की क्वीन हो और वो वहाँ का किंग, तो कैसे होगा? कोई बात नहीं, मेरा ही भाई है जो वहाँ का किंग बनेगा मेरे जाने के बाद। क्या? हाँ, मेरा भाई वहाँ का किंग बनेगा, तो कोई फिक्र नहीं है। कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जिमिन के साथ रहने वाला हूँ। जिमिन यहाँ की क्वीन ही रहेगी, फिक्र मत करिए। जिमिन यहाँ की क्वीन है, क्वीन रहेगी, वहाँ का किंग भी है और किंग रहेगा। टेंशन मत लीजिए इन सारी चीज़ों को लेके। तो जिमिन ज्योति अपने ही प्लेनेट पे रहती है जंगो के साथ। जंगो जो होता है जिमिन के साथ रहता है, जिमिन के प्लेनेट पे। तो आर्मी ये एक छोटा सा वन शॉट था जो मैंने आप लोगों को दिया। बताऊँ